तो वेक्टर स्पेसेस, chapter 3. So here you have what are the properties? Two operations I told you. You have a V with two operations, vector addition and scalar multiplication. So this is your external operation, you can say. External means your alpha is coming from field and vector coming from vector space. Addition mein you have, this is binary operation, but this is not binary. This is your external product because alpha is coming from the field and vector is coming from the vector space. Then you are saying alpha dot u. This should be belong to this set. This is called your scalar product. Is it clear? While vector addition means you have u v belongs to v, then u plus v belongs to v. This is your vector addition. So under these two operations, what I told you that first thing is your v plus means the vector set, non-empty set with respect to addition should be a what? Commutative group, है ना? Forms a commutative group. Plus means with respect to vector addition. And then several second properties are, you have this alpha u plus v is equal to alpha u plus alpha v, and alpha plus beta u should equal to alpha u plus beta u. Whenever I will write alpha beta, they will be scalars. Keep in mind. Where alpha beta, they are real numbers, and this uv, they are vector spaces. For all this. And तो इसे मैं अगर फर्स्ट और सेकंड को ब्रेक कर लूं, फर्स्ट आपका वेक्टर एडिशन में, सेकंड मल्टीप्लिकेशन में. सेकंड वाज alpha times of beta u should be alpha beta u. This should equal to beta alpha, क्या था, beta alpha है, beta alpha u, or you can say beta alpha u. This is your, that means the scalar is commutative. And third one is 1 dot u should equal to u for all u. So one is coming from the field. ध्यान रखना है, keep it mind. This is from a real number, scalars. Okay. So this will form a vector space if you have all these properties. Keep it mind. ये properties होनी चाहिए. So if I am taking over real number, it is called real vector space. If I am taking over C, it will called complex vector space. अगर मैं यहाँ alpha beta को from C से ले लूँगा, if alpha beta belongs to complex set of complex numbers, then V is called complex vector space. So whenever you are defining a vector space, you need a field, है ना? इसे field बोलते हैं. ये field है, real number आपका ये field है. You need a field. Field may be real, field may be complex. So we will be dealing with real vector spaces only in your syllabus here. And there are several examples. अगर मैं R से start करूँ, R set of real numbers, बताओ क्या ये vector space है with this operation? तो पहले तो बात ये होगी कि when I am taking a vector space, I need a field. तो ये डॉट कहाँ से आ रहा होगा? कहाँ से? ये तो R से आते हैं. तो the point is R over R. यहाँ पर, अब यहाँ पर जब इस R को लूंगा मैं, तो ये R का मतलब है V, तो ये R है आपकी फील्ड, है ना? I told you कि R2 के एलिमेंट्स वेक्टर है, लेकिन जो आपके पास लाइन है, ये जो है, this is also a vector, है ना? Every real number I can write as a vector. 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 plus 0 y ऐसे लिख सकता हूँ कुछ?
वेक्टर फॉर्म में तो लिख ही सकता हूँ। यस सर। तो इसलिए 1 को हम जब लिखेंगे तो 1 इट्स अ रियल नंबर बट बाय डिफॉल्ट इट्स अ वेक्टर आल्सो। बस वो रियल नंबर है क्योंकि लाइन पर एक ही पॉइंट है तो आई कैन नॉट हैव डायरेक्शन। सो एनालॉगस क्या कहते हैं उसे, आई कैन राइट कन्वेंशनली आई कैन राइट दैट इट्स अ वेक्टर। तो अगर मैं आर ओवर आर की बात करूं, अब आर ओवर आर मीन्स व्हाट, के आई विल टेक यू वी फ्रॉम आर एंड अल्फा बीटा फ्रॉम दिस आर बट बोथ आर सेम, कीप इट माइंड। तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा आर ओवर आर? चेक करिए, क्या आर ओवर आर satisfying first? क्या R over R with respect to addition is a commutative group with respect to addition? बताओ, है? Yes, Yes, sir. यस सर। है ना? तो हमने Yes, पढ़ा sir. ही है भाई। तो हमने सबसे पहले चेक किया था कि R is a group। जब प्लस लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी, ये दीज ऑपरेशंस क्या ये होल्ड होंगे? ये सारे यस बताइए। सर। डेफिनेटली भाई, ये सब क्या है? अल्फा यू वी दे आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स फॉलोज ऑल डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एवरीथिंग इज देयर, है ना? तो सेकंड आल्सो होल्ड्स। तो फर्स्ट होल्ड्स, सेकंड कंप्लीटली होल्ड्स। तो इट मींस आर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस। अच्छा, जेड, जेड आपका क्या है? ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो व्हाट अबाउट जेड ओवर आर? बताइए, क्या वेक्टर स्पेस है? जवाब दो। सबसे पहले चेक करना है क्या ग्रुप है। यस सर। ग्रुप है, ठीक है। अब ये बताओ कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है जो नहीं होल्ड हो रही है, या एवरी प्रॉपर्टी इज होल्ड्स देयर? देख लो प्रॉपर्टीज, ये ऑपरेशंस हैं, बताइए। यूज योर ब्रेन, इतना बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। कौन बताएगा? कोई एक टेस्ट फेल कर दीजिए। Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, ये हमें पता है। बताइए, इतना टाइम लगना चाहिए यार। Is there any property which does not hold here? Sir, alpha u does not belongs to V, means Z there. For what alpha? Alpha is any real number. Alpha u does not belongs to Z। ये बात सही है। जब मैं अल्फा को क्या ले लूंगा? नॉन इंटीजर, तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। अगर अल्फा इंटीजर है तब तो कोई बात नहीं है, बट इफ अल्फा इज नॉन इंटीजर, अल्फा इज हाफ, u इज सपोज 3, तो व्हाट इज द अल्फा डॉट u, है ना? तो one, as I told you, when you want to discard one example is enough। वैसे तो अगर मैं अल्फा हाफ लेता, यू टू ले लेता तो बिलोंग कर जाता। अल्फा 1/3 यू 3 तो ही बिलोंग कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नंबर ले लूं विच इज गिविंग यू नॉन इंटीजर, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू Z। तो सो Z over R is not a vector space। Vn, जैसे ही हमने R लिया था, ऐसे ही आई कैन चेक नाउ फॉर मोर देन वन। अब R से अगर हम R2 पे जाएं, सपोज मैं R2 ले रहा हूँ, R2 over R, ठीक है। R2 क्या हुआ? R2 में क्या होंगे आपके पास, बताइए। यस, तो बताइए व्हाट अबाउट R2? R2 में you will be having now
two vectors, of course, because R2 Vectors. है. So you will be having here UV. So UV belongs to R2 and alpha beta I will be taking from R. है ना, ये रियल नंबर्स पर कि ये आपकी फील्ड होती है. अब बताइए R2 over R. Firstly think whether R2 this is a group or पहले तो वो देखो प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है. सम ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू R2 बिलोंग करेगा. इफ मैं R2 में चेक करूंगा तो आई विल चेक फर्स्ट थिंग आई विल चेक वेदर ऑपरेशन इज बाइनरी और नॉट. सो इफ आई एम टेकिंग सपोज टू वेक्टर्स u1 v1 and u2 v2 belongs to R2, so their sum it should also belongs to R2. अगर अब हम इसका सम करें क्या आएगा सम बताओ. एनीबॉडी नोज व्हाट इज द सम, व्हाट इज द एडिशन. u1 u2 u1 Plus u2, comma v1 plus v2. it is called component wise addition. u1 plus first component will add in with first, second with second. तो ये क्या है, again it is a member of R2 है ना, ये again it is some real number, so this belongs to R2. तो इसका अलावा vector addition is defined here. This is closed. What about alpha u1 v1? अल्फा में कोई रियल नंबर अगर ले लेता हूँ तो व्हाट अबाउट दिस. अब यहाँ पर क्या होगा, अल्फा पे मल्टीप्लाई इनसाइड अल्फा u1 अल्फा v1 है ना, ये होता है. क्या ये स्टिल इट इज बिलोंग्स टू R2 और नो. Yes, sir. क्योंकि अल्फा आपका रियल नंबर है तो ये R2 में रहेगा. अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स होता तो नहीं आता R2 में, लेकिन अल्फा तो रियल नंबर है. तो इट मींस व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी इज देयर, मींस वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड है ना. यहाँ पर आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो गया था, तो इट मींस आई कैन चेक रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज. तो सपोज इट वाज द वेक्टर एडिशन, अभी तो हमने प्रॉपर्टी चेक. अब फर्स्ट आपके पास क्या है, इट शुड बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो अब बताओ R2 इज अ ग्रुप और नॉट. बताओ यार, Yes, sir. Group. क्या चीज प्रॉपर्टी नहीं है, हर एलिमेंट है. तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0,0 बिलोंग्स टू R2, इट इज द आइडेंटिटी. और -u1, -v1 दिस बिलोंग्स टू R2. हर एलिमेंट का है ना, अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट भी है. तो अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसका इन्वर्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो हर एलिमेंट का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है. कोई अगर सेकंड में है तो उसका इन्वर्स ये है. तो इट मींस व्हाट, इट हैज इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट. और बिकॉज दे आर द नंबर्स, so associativity is also there. Numbers always follows associativity. So when you will take u plus v plus w, it will be equal to u plus v plus w. यहाँ पर u v का मतलब क्या है, यहाँ पे u का मतलब ध्यान रखना ये है अब पेयर में है ना. अगर मैं u r का मेंबर लिखूंगा तो u is u, but if r u is a member of R2 तो u means u1 v1. Keep it mind है ना. चलो, so it is forming a group, in fact commutative group. Commutative group, R, R2, R3, R4, they always forms a group, so it will be holding this. And what about rest properties? Rest properties will also hold, because when you will take alpha, ये जो property है, these are the property, but because these elements are real numbers, so real numbers will always follow this thing, है ना. So rest of the properties will also hold. For example, if I am taking first alpha u, एक प्रॉपर्टी दिखा दूं अगर मैं, मान लो I want to check what about alpha u plus b. Suppose alpha u plus b. तो alpha u plus b means alpha, अब u plus b अभी आपने निकाला था, u plus b what how much, ये था u1 plus u2 v1 plus b. क्या था u1 plus क्या लिया था हमने, हाँ v1 plus v2. ठीक, ओके. अब इसमें I can multiply alpha inside because I have this property कि alpha can go inside and still it is belonging to R. So alpha can go inside, so alpha times u1 plus u2
and alpha can go here also. Okay, मुझे keep in mind क्या शो करना, I want to show this equal to alpha u plus alpha v. अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, I can write alpha u1 plus alpha v1 है ना, हम इसे हमें लिखना है सॉल्व करके। तो अभी चलो अभी पहले अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले। अभी मैं अगर लिखूं इसे तो आई कैन राइट इट अल्फा स्टेप और अल्फा u1 प्लस अल्फा u2 एंड अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 लिख दिया ना। u हमारा क्या है ध्यान रखिएगा, u क्या लिया था मैंने कि u1 कॉमा v1, u इज u1 कॉमा v1 एंड v इज क्या लिया था देखने u2 कॉमा v2। So now you got alpha u1 plus u2 alpha u1 plus v2। अब ये क्या है, I want alpha u plus alpha v, तो क्या alpha u plus alpha v आ रहा है? yes sir. कैसे आएगा, ये तो alpha u को ही हुआ, ये क्या अल्फा करें u1 कॉमा अल्फा v1 एक होगा एक। इसे, अगर मैं इसको अगर ब्रेक करूं तो इसको और इसको आई कैन राइट अल्फा u1 कॉमा अल्फा v1 प्लस अल्फा u2 कॉमा अल्फा v2, है ना। जब तुमसे कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे तो ये चीज तो आएगी, है ना। तो ये क्या है अल्फा u प्लस अल्फा v, तो ये होल्ड हो रहा है ना। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज होल्ड। All other properties. So it means R2 over R is a vector space. In fact, in general, you can say that Rn over R. In fact, Rn over R is a vector space. Vector space को मैं short में Vs लिखूंगा, ठीक है। अब in your book they are using Rn as a Vn, क्योंकि ये vector space बन रहा है, तो real की space in place of real I am using Vn। तो Rn को they are representing by Vn, इससे रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो R2 मीन्स R2 को they are representing by V2, तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है, ये आपका R2 V2 जो है बस they are representing because it is a vector space, so I will writing V2। So in general you can say V1, V2 and so on Vn, they all are vector spaces over R, है ना। बस ये हुआ कि अगर आपके पास Vn है तो Vn के एलिमेंट्स क्या होंगे, x1 x2 xn ना। अगर मैं ऐसे लिखूं ये तो लिखेंगे where yes sir. x1 x2 xn they all are क्या है, कुछ रियल नंबर, ऐसे डिफाइन Real करोगे। number. जैसे अगर आप V4 लेंगे तो V4 में एलिमेंट्स क्या आएंगे, अगर कोई एलिमेंट लिखूं इसकी आइडेंटिटी क्या होगी 0 0 0 0, इट इज द आइडेंटिटी। इनवर्स क्या होगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। अगर मैं 1 1 1 1 ले लूं तो ये बिलोंग्स टू V4 है, इसका इनवर्स क्या -1 -1 -1 so in this way you can define Vn। तो Vn is what, set of n tuples, इसे हम n tuples बोलेंगे। अब 2 होता है तो ऑर्डर्ड पेयर, 3 है तो ट्रिपलेट्स, है ना, 4 है तो 4 टपल्स, n है तो n टपल्स, इट इज योर set of n tuples। So this is a vector space over R। ये एग्जाम्पल है आपका, आइडेंटिटी आपको मालूम चल गई, अगर V4 है तो 4 times 0 and so on। Similarly, you can take one more example. There are several examples you can construct by yourself. Set of all real valued functions. If I am defining f of I, so how I am defining?
I am defining set of all real